شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جس مقام پر ہم موجود ہیں وہ اہم ترین مقام ہے لاہور کا، یعنی لاہور کی جیل روڈ۔ یہ وہ شاہراہ ہے جس کو میڈیکل کیئر کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس پر نجی اور سرکاری مختلف ہسپتال موجود ہیں جہاں شہر بھر ہی نہیں بلکہ دیگر اضلاع سے بھی لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، اور جب ایک بڑی تعداد، بڑا فلکس یہاں پر علاج کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے۔ میرے بائیں جانب سروسز ہاسپٹل موجود ہے، اس سے پیچھے پنجاب کارڈیالوجی موجود ہے، اور اس کے ساتھ مختلف نجی ہسپتال موجود ہے، لیبارٹریز موجود ہے۔ یہاں پر مریض آتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ شاہراہ آج بند ہے۔ یہ بند کیوں ہے؟ یہاں پر 500، 700، 1000، 2000 بندہ موجود نہیں ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ ہیں جی، زیادہ سے زیادہ 24 نہیں تو 26 لوگ ہوں گے۔ انہوں نے اس روڈ کو بلاک کر رکھا ہے۔ ان کے ساتھ میرے بائیں جانب اگر میرا ایک کیمرہ پین کرے تو تقریباً 2-2.5 درجن کے قریب ہی پولیس اہلکار موجود ہیں۔ یہ یہاں کیوں ہے، وجہ کیا ہے، وہ تو انہی سے سمجھیں گے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمرجنسی کے رستے بند ہیں، ایمبولینسز کے رستے بند ہیں، ان کو التوا کا شکار ہونے کے بعد اپنی ہیلتھ فیسیلیٹیشن کے لیے یہاں پر آنا پڑتا ہے۔ اور صرف 2 درجن لوگ بیٹھ کر اگر اتنی امپورٹنٹ اہم ترین شاہراہ کو بند کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے لیے، صوبائی انتظامیہ کے لیے اور ضلع انتظامیہ کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ بنیادی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات جو کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑے معاملات ہیں، ان کے گھر کے معاملات ہیں، ان کے رزق روٹی کے معاملات ہیں، ان کو حل نہیں کر سکتے، اور ان کی وجہ سے سینکڑوں مریض تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی کریٹیکل پیشنٹ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اس کا بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی اس پر بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان سے سمجھتے ہیں جی کہ اس تمام تر معاملے کی وجہ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، ایک کار کھڑی ہے جی، اور 1، 2، 3، 4 موٹر سائیکلز کھڑے ہوئے، یعنی یہ بہت کمزور اور چھوٹی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی موجودگی بنیادی طور پر، میں نے پہلے کہا کہ 500-700 لوگ نہیں ہیں، کوئی ہزاروں لوگ نہیں ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطالبات ضرور ہیں ان کے، اور ان مطالبات کا منطقی انجام کیا نکل رہا ہے۔ یہ ہسپتال کے اندرونی مسائل تھے جو کہ آج سڑک پر حل ہو رہے ہیں۔ الامان، اللہ حافظ، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی؟ کہاں سے ہیں، کون سے ہاسپٹل سے ہیں؟ میں یہ سروس ہاسپٹل سے۔ کیا کرتے کیا ہیں؟ میں وہ سویپر ہیں۔ یہ سارے جو ہیں درجہ چہارم کے لوگ ہیں؟ ہاں جی سر، ملازم ہیں؟ ہاں جی۔ مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے کہ آپ 12-14 تقریباً 24-26 لوگ ہیں، اور آپ نے آ کے اہم ترین جیل روڈ، یہاں پر ایمرجنسی کے راستے ہیں، پیچھے پنجاب کارڈیالوجی ہے، شدید امراض کے لوگ علاج کے لیے آ سکتے ہیں، آپ نے ان کا راستہ بند کر دیا۔ ایسی پریشانی کیا ان پر؟ پریشانی یہ ہے سر، 16 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے ڈیلی بیس سے انہاں سانوں ریگولر نہیں کیتا۔ کورٹ دے آرڈر ہے کہ مطلب کہ ریگولر کیتا جاوے، سال ہو گیا لیکن پھر بھی سانوں مطلب ریگولر نہیں کیتا۔ یعنی عدالتی احکامات کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ریگولر نہیں کیا سر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سڑک پہ کیوں آنا پڑا، وجہ کیا؟ پہلے تو یہ بتائیے، مسئلہ تو اندر حل ہونے والا تھا اسپتال میں۔ ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مسئلہ حل کرنے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے پولیس کو بلایا، ہمیں دھکے وغیرہ لگائے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم باہر بیٹھے ہیں۔ یعنی ہمیں غصہ آ گیا ہے کہ ہمیں اندر غلط ٹریٹ کیا گیا، اس وجہ سے ہم نے آ کے سڑک بند کر دی۔ جب 22-23 روز سے ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پورا امن طریقے سے ہمارا ایک کیمپ لگایا ہوا ہے، ہم کسی قسم کی کوئی بھی سورش پیدا نہیں کر رہے۔ آج ہم بیٹھے تھے OPD کے باہر، پولیس آئی ہے، ساتھ میں انتظامیہ آئی ہے، جا کے انہوں نے ہم کو دھکے مارے ہیں، جس وجہ سے ہم مجبور ہو کے ہم باہر آ گئے ہیں، کیونکہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، سیکریٹریٹ کا آرڈر ہے کہ ریگولر کیا جائے، 600 بندے کو جو ہے وہ ایریا ہیں وہ جا دیے جائیں۔ 3 کروڑ 30 لاکھ روپیہ ہے جو 3 سال سے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا آرڈر سیکریٹریٹ جو محکمہ ہے پورے ہیلتھ کے اوپر محکمہ تھا، وہ آرڈر دے چکا ہے، جا کے ان کو پیمنٹ واپس کی جائے، وہ نہیں کر رہے جا کے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، یہ مسئلہ اندر حل ہو سکتا تھا اگر MS صاحب چاہتے یا ضلع انتظامیہ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن چاہتی
बिल्कुल ये मसला बड़ा हल हो सकता है? बहुत सिर्फ ये 2 मिनट का सिर्फ काम है, पेपर वर्क तैयार है, हर चीज तैयार है, सिर्फ इंतजामिया नहीं कर रही। इंतजामिया का 2 मिनट के काम है, फिर उन्होंने साइन करने हैं, कमेटियां बन गई हुई हैं, कमेटियों ने फैसले दे दिए हुए हैं, सेक्रेटरी ने फैसले दे दिए हुए हैं, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ है, सिर्फ इंतजामिया जो क्या इस पे अमल वक्त कर रही है। नहीं है या पैसे नहीं है? सब कुछ है इनके पास, पैसा भी है, वक्त भी है, सिर्फ ये कुछ बीच में रेजिस्टेंस है, कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो करप्शन में हैं कौन है ऐसा बंदा जो सारे इतने लोगों को नुकसान कर रहा है? वो कौन है? बस नाम इनके नहीं? बीच में ये मेन तो यही जानते हैं जो इनके साथ शामिल है, जो इनको रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई का? वकास वकास साहब की ड्यूटी है? भाई इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रीशियन है, यानी आपका भी यही मसला है। तो अभी अंदर कोई इशू हो जाता है, आपकी जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करेंगे? सर इमरजेंसी के लिए तो हाजिर है उनके साथ। अच्छा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर कोई इमरजेंसी हो गई है? कोई बंदा आपको ढूंढ रहा है कि यार ये मशीन बंद हो गई है, नहीं हमारे बंदा लड़के ना मर जाए जो जिसका ट्रीटमेंट हो रहा हमारे है? लड़के वहाँ पे मौजूद है, उनका हमने भेजा हुआ है अपने लड़के को। हमारे लड़के के अस्पताल को हॉस्पिटल मुलाजिम। के हमारे साथ जिनसे मेरे कलीग हैं, ठीक है, उधर ही है। तो क्या मुकम्मल तादाद में बाहर नहीं है या कोई इख्तलाफ भी है आप लोगों के नहीं दरमियान? है, मुकम्मल तौर पे नहीं है। ये तो 2 दर्जन लोग हैं, सारे 22-24 लोग हैं। शिफ्ट 3 शिफ्टें चलती है ना। ठीक है, आपकी ड्यूटी क्या क्या टाइम मॉर्निंग है? है, मॉर्निंग तो यहाँ किस टाइम आए हैं? मॉर्निंग टाइम पे। मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे आ गए थे। तो जब आप अपनी शिफ्ट के टाइम पे बाहर सड़क पे बैठे हुए थे, तो शिफ्ट कौन चला रहा था? वो है हमारे लड़के उधर चला रहे हैं। अगर इसका मतलब ये है कि कम लोगों से अस्पताल का निजाम चल सकता है, आप नहीं एक्स्ट्रा हैं क्या? एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर निजाम चल सकता होता तो आपको भर्ती क्यों किया हुआ है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है। कोविड के हवाले से हेल्थ इमरजेंसी है लाहौर में, आपको पता है इस बात का? पंजाब पाकिस्तान में बहुत बुरी हालत है लाहौर की इस टाइम पे कोरोना के हवाले से। आप खुद सारा दिन अस्पतालों में फिरते हैं, आप लोगों ने कोई मास्क नहीं पहने हुए, कोई एहतियात नहीं है, कोई फासला नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई मर्ज फूट पड़ता है यहाँ से, तो आप लोगों के बच्चों को तो आपकी जरूरत है मेरे भाई। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? ठीक है। अब क्या इसका हल क्या है, मंतकी हल क्या है? क्योंकि अभी अंदर आपके साथ इख्तलाफ हुआ, आप आके सड़क पे बैठ गए, आहिस्ता आहिस्ता खुदा ना खास्ता आपकी तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं ये तकलीफ से कह रहा हूँ, वजह ये है कि ये आम लोगों का रास्ता है, लोगों ने आना जाना है, इमरजेंसी एम्बुलेंसेज सब लोग पार हो जाएंगे। MS साहब को ये बात पता है? पता नहीं सबको पता। क्यों नहीं मसला हल कर रहे हैं? ये उनको चाहिए ना कमेटी के हमारा मसला वो नहीं करेंगे, हम यहीं बैठे हैं, हम यहीं बैठे हैं। 23-22 दिन हो गए यहाँ अंदर बैठे। अगर आपको पता चलता है कि वो पीछे कार्डियोलॉजी के पास जहाँ से रास्ता बंद किया गया वहां पर एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, ऑब्वियसली हमने भी देखा फंसी हुई थी, तो उनका आपके पास कोई हल है, कोई सदेबाब है? वो एक दूसरा रास्ता खोला होगा, कौन सा रास्ता? ये वाला साथ। या 500 गाड़ी इकट्ठी आ रही होती है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलेगा, ये सड़क क्या गैर जरूरी थी? अब तो इनको चाहिए ना कि हमारा मसला अटेंड करें। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी आपका मसला हल होना चाहिए था। नाज़रीन, इनके पॉइंट्स इनके ताई ठीक है, उनके मुतालिबात बुनियादी तौर पर वो हक रखते हैं मुतालिबा करने का, लेकिन हम जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, हम दोनों तरफ अतराफ को देख रहे हैं, बल्कि तीनों अतराफ को। हमारे लिए पेशेंट भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये लोग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिलियनर्स और बिलियनर्स नहीं है, ये गरीब गुरबा हैं जो महीने बाद अपनी तनख्वाह लेते हैं और अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं, और खुदा ना खास्ता इस ज़िम्न में कोई नालायकी इनके सामने आके खड़ी हो जाए तो इनके मामलात डीरेल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका घर चलाना मुश्किल हो जाता है। हम तफसील के साथ इस मामले को समझने की कोशिश करें, और हमारी ख्वाहिश ये भी होगी कि हम MS साहब के शाही दरवाजे पर भी दस्तक दें, उनसे समझने की कोशिश करें कि पाइन केड़ी गलती हो गई आम आवाम को जिसकी सजा उनको मिल रही है कि उनकी एम्बुलेंसेस जो हैं वो पर वक्त नहीं पहुंच पा रही। चंद लोग हैं 2 दर्जन के करीब, इनके मुतालिबात, इनके मसाइल जो कि उनके मुताबिक कोर्ट ऑर्डर्स हो चुके हैं, सब चीजें हो चुकी हैं, तो फिर भी नहीं माने जा रहे। ये एक शर्मनाक मामला है, बुरा ना मनाइएगा। मसला ये है कि जो गवर्नमेंट मौजूदा है, इन्होंने अपोजिशन में धरने भी दिए, एहतजाज भी किए, वो धरने और एहतजाज की सियासत और जरूरत को हवा मिल गई। अब आप लोग 2 दर्जन लोग हैं, आके हजारों लोगों की तकलीफ का बायस बन रहे हैं, वजह क्या है? इसका हल क्या करेंगे? सर वजह ये मैडम यास्मीन राशिद जो बिल्कुल हमें काम करने पर ना करने पर वो खुद मजबूर कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है 3 बार हेल्थ डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स मांगी जाती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट अप्रूवल्स देता है और मैडम उसको रोक के बैठे हुए हैं अपने जोरे जबर पे कि मैं जनाब हेल्थ की मिनिस्टर हूँ, मैं किसी को रेगुलर नहीं होने दूंगी। इसके पीछे मैडम ने क्या आपकी तनख्वाहें लेनी है? उनको क्या तकलीफ हो सकती है? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। उनकी जो कंपनीज आएंगी
MTI एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मुझे तफसीलन पता बताना है, चाहता हूँ। ठीक है। MTI में सारी कंपनीज उनकी होंगी। अच्छा जी जी। कितनी कंपनी है यास्मीन राशिद साहब की जाती? सर मेरे ख्याल से 2-4 तो होंगी। वो सारी यहाँ पे आनी आनी है? है। क्या क्या नाम है उनके? सर नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं बता देना सर, कोई कंपनियां उनकी हैं तो मुझे मैं मेरे ख्याल से तो ये शायद तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। GSK, एबट, ये वो सारी ये उनकी कंपनी है? सर उनकी होंगी। सर कोई उनकी होंगी क्या, मतलब अंदाजे पे टेवा लाई जा रहे हो? सर मैं बताता हूँ आपको सारी बात। अब हम जब मैडम के साथ बात करने के लिए जाते हैं, MS साहिबान के साथ बात करने के लिए जाते हैं, वो क्लियरिटी ये से बताते हैं भाई ऊपर से बड़ी जो है हमें रोका हुआ है, हम आपका काम नहीं कर सकते। ये कौन कहता है? ये MS साहब कहते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर जाहिद साहब है, म्यो से ट्रांसफर हो गया है। जाहिद साहब कहते हैं कि आपका काम नहीं हो सकता, रोका हुआ। रोका हुआ। अच्छा जी जी हम पिछले 24 दिन से सरापा एहतजाज हैं। बड़े पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे, उसके बाद हम अपने काम पर वापस चले जाते थे। काम चल रहा था, निजाम चल रहा था। आपकी ड्यूटी किस टाइम होती है? सर मेरी ड्यूटी मॉर्निंग में जी। तो आप यहाँ पर सुबह किस टाइम से बैठे हुए हैं? सर हम सुबह 6 बजे से यहाँ पे तो कम यहाँ थोड़े पे- से तक नहीं कीता है। सर यहाँ पे 6 बजे से नहीं बैठे, हम बड़े अपने अंदर बैठे थे ना? अंदर बैठे थे, बड़े शेड्यूल से हमने अपने काम को जो काम था वो करके शेड्यूल के साथ हम अपना जो आधे घंटे का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं उसके लिए OPD की तरफ थे। उसी वक्त हम पर पुलिस का एक भारी तबका आया, जोर जबर से धक्के मार के वे इस चीज से रोका गया कि आप एहतजाज नहीं करें। हम क्योंकि यहाँ हेल्थ पर इमरजेंसी नाफिज हो गई है ना पंजाब सर में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाहौर में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम यहाँ पे नहीं आना चाहते। हमें पता है हम वो तबका जिन्होंने मरीजों की खिदमत कर। हमारा कोरोना इंसेंटिव अलाउंस वज़ीर आला साहब ने अनाउंस किया। मेरा एक हुकूमत से ये सवाल है आपके शो के थ्रू कि अभी तक वो हमें क्यों नहीं मिल सका, उसके पीछे जायज सवाल है, आपका सवाल गलत नहीं है। अगर वज़ीर आज़म साहब ने धरने देकर हुकूमत ली है, हम अगर अपना पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं सर? क्या सर सड़क बंद करने का जवाब नहीं सर समझ मैं आता। बता दूं, सड़क बंद करना और वो भी इमरजेंसी का रास्ता बंद करना, ये तो सर, शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल हम इस चीज को मानते हैं। शर्मिंदगी होनी होनी चाहिए चाहिए। सर। खुदा ना खास्ता आपका ही कोई अजीज, मैं बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ, या इनमें से किसी का अजीज आपको पता भी नहीं है, आपकी वजह से पीछे एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और उसका इलाज नहीं बर वक्त हो सकता, क्या सारी जिंदगी आप उसकी भरपाई कर सकते हैं? सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे कि हैं। 24 बंदे बह के थे, जेल रोड बंद कर दी, वो भी अस्पतालों का रास्ता। सर ये भी देखिए ना, इमरजेंसी भी चल रही है, इंडोर्स भी चल रहे हैं, आउटडोर भी। हमने किसी सिस्टम को स्टॉप नहीं किया और ना हम करना सर चाहते इससे हैं। ज्यादा स्टॉप क्या होगा कि आपने एड्रेस बंद कर दी। मेरा कैमरा पैन करें जी, बैक साइड पे देखें, यहाँ से एम्बुलेंस कहाँ से निकल के आएगी? मुझे सर आप बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज इंतजामिया को सोचनी चाहिए हर सूरत। इंतजामिया नालायक है, आप भी नालायक हो जाएंगे। सर देखिए ना, हम तो पिछले 24 दिन से 24 दिन मेरे ख्याल से कोई 24 दिन थे 24 बंदे, नहीं सर, यानी फी दिन फी बंदा। सर नहीं, हम यहाँ पे बड़े- तो 24-25 हम बड़े- बंदे हैं। बड़े पुरअमन लोग हैं, हम नहीं चाहते कि ये चीजें हों। लेकिन सर देखिए ना, अगर पुलिस की तरफ से मेरी रजिस्टर्स आएगी, पुलिस आके अगर हमें धक्के देगी, पुलिस का काम है कि रिट ऑफ लॉ को मेंटेन करे। अब हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ही नहीं कर रहे। ये इससे ज्यादा अभी situation मजबूरन और क्या करनी पड़ी, मजबूरन करनी पड़ी, क्योंकि हम पूरा अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, जिसकी वजह से हमें रोका गया। और महाराज जी, दिस इज द सिचुएशन जो आपके सामने रख रहे हैं, आप मेरे अकब में देख सकते हैं। VVIPs भी इस वक्त पर यहाँ फंसे में वजह के कि 24-25 लोग बैठ जाते हैं, जेल रोड बंद कर देते हैं, अपने मुतालिबात रखते हैं, और नालायकी इस अस्पताल के MS साहब की है। बुनियादी तौर पर यास्मीन राशिद साहिबा को इसकी जवाबदेही के हवाले से तैयार रहना चाहिए कि यार एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके मसाइल आप हल नहीं कर सकते, एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं, लोग फंसे रहते हैं और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है आज एक दिलखराज सिचुएशन आपके सामने रख रही है। मैं मौजूद हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने। ये OPD का रास्ता है जी, और ये साथ इमरजेंसी का रास्ता है। इससे पीछे पंजाब कार्डियोलॉजी है और उसकी इमरजेंसी भी इसी जेल रोड पर मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई 2 दर्जन के करीब मुलाजमीन जो हैं वो बैठ जाते हैं। करते क्या हैं कि ये एक डॉक्टर साहब की गाड़ी है, डॉक्टर साहब का नाम मैं नहीं लेता, एक कार, 4 मोटरसाइकिल्स और ऊपर 2-4 डंडे रख लिए जाते हैं, और उसके बाद इस अहम तरीन शाहराह को यानी जेल रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। वजह क्या बताई जा रही है? वो बुनियादी तौर पर उनके कुछ मुतालिबात हैं जो कि मुतालिबात हकीकत पर मबनी हैं। उन मुतालिबात को मुकम्मल होना चाहिए। एक देर पा मुतालबा है
कि इनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से काम किया जाए। अब सर्विसेज हॉस्पिटल बुनियादी तौर पर समझा जाता है कि एक अहम तरीन अस्पताल है, लेकिन उसका स्टाफ सड़क पर बैठा है और मरीज जिसने इसी शाहराह से होते हुए अस्पताल में इलाज के लिए जाना है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। अब कोई एम्बुलेंस में है, कोई जिम्मेदार नहीं, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई जिम्मेदार नहीं। मौजूद हैं जी जिम्मेदारान, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई रास्ता क्यों बंद किया? सर हमने साइड से रास्ता खोला हुआ है कौन सा ट्रैफिक के लिए। रास्ता सर? ये सर्विस इससे मुझे रोड एक बात बताएं। जी जी। अगर उस सर्विस रोड बर्डन उठा सकती होती जी, ट्रैफिक का, जी, जी। तो इस सड़क की जरूरत क्या थी? सर अगर हम भी अंदर का एम्बुलेंसेस का रास्ता है ना। बिल्कुल, अगर हम अंदर का प्रेशर उठा सकते, देखिए हम पूरा मन 23 रोज से एहतजाज पर बैठे हुए थे, पूरा मन बैठे हुए थे, जिसकी गवाही एसी लाहौर और डिप्टी साहब और SHO अपना राव साहब थे, वो दे सकते हैं। हम पूरा मन मुज़ाकरात चाहते हैं, टेबल पे हल चाहते हैं, लेकिन हम 23 रोज से इसका हल कौन नहीं चाहता वो बताएं। इसका हाल मैडम यास्मीन राशिद है वो और तो वज़ीर सेहत है, वो वज़ीर क्यों नहीं सेहत। चाहेगी? बात सुने ना, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब एक साल पहले कि इनको रेगुलर कर दे। सुप्रीम कोर्ट की भी जनाब डायरेक्शन साथ आ गई। CM ने भी कह दिया कि पंजाब के वर्क या टेलीविजन मुलाजमी को रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन उनके तमाम अपना लोगों के जो हुक्मनामे थे उनको हवा में उड़ा दिया गया। सिर्फ चंद लोगों को रेगुलर किया गया, उन जो केसेस में थे। बाकी लेकिन लोग भी चंद केसेस लोग थे। तो यहाँ नजर आ रहे हैं, बाकी चंद लोग होते तो बाकी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ये लोग मॉर्निंग ड्यूटी करके आपकी ड्यूटी का वापस आए। टाइम क्या है? हमारी ड्यूटी का टाइम मॉर्निंग है, हम ड्यूटी करके वापस 6 बजे नहीं, सुबह 8 बजे शुरू होती है। 8 बजे कब तक है? 8 से 2 होती है। 8 से 2। आप यहाँ पर ड्यूटी के बाद है पहले ही है? ड्यूटी हम जिससे मतलब झगड़ा हुआ है उस टाइम आप कहाँ थे? हम लीडरशिप है 23 रोज से हड़ताल पर तो थे। लीडरशिप तो ठीक कम है? माफ है। बात ये है कि हम मुलाजमीन के लीडरशिप हकूक़ के लिए- काम नहीं करेगी मेरे भाई, बाकी कैसे बाकी करेंगे? हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या एक साल से मिसाल के तौर पे हमारे- ऐसी किस चीज का इंतकाम है? हम MTA एक्ट के खिलाफ बेसिकली निकले कि ठीक है। MTA एक्ट जो काला कानून है हम इसको नहीं मानेंगे। सारे निकले थे, रिफॉर्म- डॉक्टर्स भी निकले थे, स्टाफ भी हाँ, निकला था, हम पैरामेडिक्स चाहते- भी निकले थे। हम चाहते थे कि रिफॉर्म लेकर आना, लेके आए, ठीक लेकिन है। जो असल मकसद जो लेके आ रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट है। का मतलब है कि बिजनेस मैन को दे मैं दिया समझ रहा जाएगा। हूँ ताकि आप लोग काम करें, सड़कों पे ना बैठे। नहीं काम नहीं करे, उसमें देखिए हमारी सरकारी हैसियत को खतरा है, ठीक है कि नहीं? सर आप ये देखिए, इस मुल्क की जी। बुनियादी तौर पर आम आदमी के बुनियादी हकूक की हैसियत को खतरा है। आप कह रहे हैं आपकी सरकारी सर वही हैसियत बता को रहे हैं खतरा ना, है। गरीब की हैसियत, सरकारी गरीब के इलाज की हैसियत को खतरा है। अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में मुलाजिम होते, आप धरना दे के बैठे होते? बिल्कुल नहीं देते। सड़क बंद करके बैठे बिल्कुल- होते? बिल्कुल तो नहीं ऐसे देते। क्यों? सर बात सुने ना, ये कौमी सासा है, ठीक है, हम इसके जिम्मेदार कौमी हैं। सासा आप भी हैं। सर हम भी है ना, बात आपको सुने, काम करना हम चाहिए। कौमी सासे को बचाने के लिए निकले सर, हैं। काम करते हुए सर, मुतालबात काम- रखे सर, ना। काम बड़े पुरअमन तरीके से कर रहे थे, हमने खुद सर पिछले PTI को 23 वोट दिन से डाला। आप लोग स्ट्राइक पे हैं। जी बिल्कुल। 23 दिन आप लोग काम नहीं करना चाह रहे, आज सर, आके सड़क बंद कर सर, दी, आपके हमने- नहीं काम पे हैं। सर हमारे मुज़ाकरात तय हो चुके थे, ठीक है, 4 तारीख को बड़े पुरअमन इत्तेजाब मुज़ाकरात हो चुके थे। उस वक्त हमारा कोई धरना नहीं चल रहा था, धरना हमारा 5 तारीख से शुरू हुआ, ठीक है। उसमें ये हुआ बड़े पुरअमन AC साहब आए, मुज़ाकरात तय पा गए कि आपके मुतालबा कुछ खवातीन है जी, उनसे भी बात करते हैं, आपके सामने रख रहे हैं। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, मुझे इन पर हैरत भी है, लेकिन इससे ज्यादा हैरत अंदर हो रही है कि यार आप लोग कौन है कि एक छोटा सा मसला आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, आप इमरजेंसी के रास्ते बंद करवा देते हैं और फिर कहते हैं कि यार आप अपने AC वाले कमरे में बैठे हुए सुकून से, और फिर कहते हैं कि ये लोग जो है ये कर रहे हैं। इनकी भी गलती है, शदीद गलती है, शर्मनाक हद तक गलती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है जी? ठीक है, सेहत अच्छी है? जी बिल्कुल। क्या जिम्मेदारी है अस्पताल में? सर जिम्मेदारी ये है कि हम लोग वर्कर हैं, 15-15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या इस बात और- है? हाँ जी सर, हमारे उधर से ऑर्डर आ चुके हैं, पीछे से थी, हमें ऑर्डर नहीं दे रहे। ठीक है, मेन बात ये है कि सर हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? काम करें। सर काम करके तो हमें वो रेगुलर नहीं कर रहे। देखिए, काम करने की वजह से सर, हम आपके morning परमानेंट shift करने वाले के हैं। ऑर्डर्स आए हैं ना? सर हम मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं, काम करके बैठे। काम करके बैठे हुए जी हैं। सर। काम morning- करके अगला पेशेंट जो है उसका रास्ता बंद करके बैठे सर हैं। क्या करें फिर, हमारी मजबूरी है। मुझे एक समझ नहीं आती, बुरा ना मनाइएगा, नहीं सर बुरा नहीं मनाते। आपके घर कुछ मेहमान आने हो जी सर। और खास तौर पे आपके घर में कोई बीमार हो, हाँ जी आपकी गली में कोई शरारती आदमी उठ के रास्ता बंद कर देता जी सर। है, आप अपने बीमार मरीज को पकड़ के खड़े में हैं कि यार हमने घर जाना है, आपके दिल पे क्या बीतेगी? तकलीफ सर- होगी ना? हाँ जी दुख होगा सर। यही तकलीफ हमें हो रही है माँ जी। हाँ जी। सर लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर होकर सड़क पर निकले, हमें 15-15 साल हो गए ये सर। मसला अंदर हल नहीं हो सकता? सर ये नहीं हल हो सकता, पहले हमने कैंप लगाया हुआ था। अच्छा, क्या ये उन्होंने उठा के हमें बाहर फेंक दिया, हम समझे। कहाँ जाए? पूरी दुनिया में
खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड मुल्क छोड़ के जो तहजीब याफ्ता कौम है, सर। मैं बड़ी तकलीफ से कहता हूँ, हम दावा ये भी करते हैं हमें भी तहजीब है, जी सर। तहजीब याफ्ता कौमें जो है उनके एहतजाज का तरीका मुख्तलिफ है, रास्ता नहीं बंद करती। आप यहाँ अपने प्ले कार्ड्स उठा के फुटपाथ पे खड़े हो सकते थे, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते थे, ऐ सड़क क्यों बंद की? सर इसीलिए हमारी मजबूरी बन गई है कि हमें ये लोग। यानी हर जुर्म के पीछे मजबूरी है। हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, सर जी। आपकी ड्यूटी क्या है मैडम? क्या क्या ड्यूटी है आपकी अस्पताल में? मैं सफाई करती हूँ। सफाई करती है। अल्लाह आपके रिज़्क में और इज्जत में इजाफा करे। सड़क की मत, ये किसने आपको कहा था कि हम यहाँ पे धरना देंगे, उसका नाम बता सकते हैं? जी हमारे हैं वो सरबरा को आ जाते हैं। नाम क्या है उनका? नाम नहीं मुझे आता। उनके अपने घर का रास्ता कभी किसी ने बंद किया? अस्पताल के रास्ते बंद करके बैठ गए हैं आप। सर अस्पताल के रास्ते बंद करके बैठ गए हैं कि 24-26 लोग 15-16 साल दो की जब कोई एक गाड़ी सुनता चार नहीं है। मोटरसाइकिल लगा के सब बंद कर देंगे। 15-16 साल से हमारी कोई सुनता नहीं है तो क्या करना? अभी पुलिस आपको उठाने की कोशिश करेगी तो रोना पड़ जाएगा, हम भी डालेंगे कि जी पुलिस ने ज्यादती कर ली है। ऐसा ही है ना? उस मरीज का जिम्मेदार कौन है जो एम्बुलेंस में पड़ा होगा? तो सर दोनों रास्ते छोड़े हुए हैं। कौन से रास्ते छोड़े? उधर से भी जा रहे हैं, इधर से ये भी तो जा वन रहे वे हैं। रास्ता है ना मैडम, इधर से तो वापस नहीं आ सकते ना, ये इमरजेंसी का रास्ता है। अगर मिसाल के तौर पे इसी अस्पताल का रास्ता कोई और आके बंद कर दे तो आप लोग चीखेंगे ना? होता है कई दफा, सब लोग करते हैं, अपने मसलों के साथ परेशान करते होते हैं ना। अंदर रहा कितनी ये देर माशाल्लाह में। अस्पतालों का रास्ता हमेशा मेडिकल स्टाफ ही बंद करता है और कोई नहीं करता। तो इसके जिम्मेदार तो एमएस साहब ही होंगे ना, जो 250 बंदे के ऑर्डर रेगुलर करने के एमएस साहब बावजूद। सुबह आके आपके साथ यहाँ धरने पे बैठे थे, नहीं नहीं, तो फिर वो कैसे जिम्मेदार? वो जिम्मेदार है ना, वो हमें रेगुलर नहीं कर रहे। 250 बंदे को अगर उन्होंने रेगुलर, बहुत जायज बात है आपकी। 250 में से 100 बंदा अगर रेगुलर हो रहा है तो उसमें से 160 का या 150 बंदे का क्या उन्होंने कसूर है? कब तक आप सर हमारे तो हॉस्पिटल के अंदर करप्शन माफिया बैठा हुआ है जो पैसे लेके, अगर उन्होंने 100 बंदा रेगुलर कर दिया तो हम लोग क्या बुरे हैं? हम लोग पैसे उन्हें नहीं दे सकते। हम एमएस साहब को यही तो क्या समझाने की आप लोग कोशिश कर रहे में हैं। एक जिम्मेदार आदमी हैं? जी क्या आप में से कोई बंदा या कमिटमेंट करने के लिए तैयार है कि अगर हम मिल के उस करप्ट माफिया को जो पैसे लेके रेगुलराइज करवाता है बेनिकाब करना चाहिए, आप लोग साथ देंगे? सर देंगे साथ, सर देख देंगे, लें। देंगे सर। भाग जाएंगे आप, मुझे पता है। सर फिर अब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है और रिज़्क रोटी भी कोई अल्लाह के ऐसा हाथ में मसला है। नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे हाँ जी जब आप निकलते हैं ना अल्लाह पे तवक्कल करके तो जी कोई सर, परेशानी नहीं सर देंगे साथ। तय हो गया जी। नाज़रीन ये सिचुएशन है आपके सामने रख रहे हैं, तकलीफ दह सिचुएशन है। मैं इनको जितना भी लिताड़ लूं, इन पर जितना भी दबाव डाल लूं, लेकिन उनके मुतालिबात बहरहाल जायज हैं। लेकिन जो गलती वो कर रहे हैं, जो जुर्म वो कर रहे हैं, वो ये इमरजेंसी का, अस्पताल का, सेहत का रास्ता बंद करने का कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है। ठीक है बेटा। क्या जिम्मेदारी बहन आपकी? बेटा मेरे जिम्मेदारी, हम मुसलमान है, सफाइयाँ करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह इतनी देर से आपको हमें अल्लाह 10-12 साल हो गए हम सफाइयाँ करते हैं, ठीक है। हमें डेली बेस को छुट्टी नहीं मिलती। डेली कोई बेस छुट्टी की नहीं है हफ्ते में? कोई नहीं, छुट्टी हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं इतवार की हमारी, भी नहीं है? नहीं इतवार की भी छुट्टी नहीं है, आपकी ठीक शिफ्टें है। नहीं बनती कि इस दिन ये शिफ्ट अगर छुट्टी किसी करेंगे, के इस दिन ये साथ शिफ्ट? मिलके किसी के साथ छुट्टी करनी पड़ती है। हमें शादी पे जाना होता है, कहीं मरग पे जाना हो, कहीं हो, हमारी छुट्टी नहीं है। अच्छा जी। हमारा दिल नहीं करता कहीं शादी पे जाने पे कहीं मरग हो जाए, कहीं हम जाए नहीं जा सकते। हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है अपने बच्चों की खातिर, ठीक है। तो इतने सालों से है ये हमें सड़क भी। बंद किसने करवाई है, उसका नाम बता सकते हैं? किसने करवाई है? जो बेटा मेरी बात सुने, सड़क किसी ने भी बंद करवाई है, ठीक है। थोड़ा सा काम है, ये लोगों का भी कर दे तो कोई इनकी आपकी बात तरह ठीक है, इनके घर से लेकिन तो नहीं मेरा- ना कुछ जाना। ये तो आपका हक है जो आपको मिलना जो चाहिए। हक है ना वो दे दे। हम अभी मैं ये कहता हूँ कि यही मसला आप अंदर बैठ के मुतालिबात अपने अंदर रख कितने सकते दिनों हैं। के बैठे हुए हैं, ये पता आपको? सही कितने से दिनों के ठीक बैठे है। हुए। हम काम करते हैं, काम करके फिर उधर बैठ जाते हैं, काम करते हैं फिर उधर बैठ जाते हैं। किसी ने सुनी हमारी? आज यहाँ पे बैठने का कितनी देर तक का प्लान है? और पता नहीं अभी अभी ऑर्डर ले दे, हमें उठ जाते हैं। अगर ऑर्डर नहीं मिलता फिर? तो अब अल्लाह जानता अब क्या बनेगा, वो तो अल्लाह को पता है। क्या कह सकते हैं। हमारा दिल नहीं करता हम छुट्टी करें, कहीं आना जाना, खुशी गमी मरण जीन, हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है। डेली बेस को क्या छुट्टी नहीं, किसी के साथ मिलना है, वर्करों के साथ मिल के फिर छुट्टी करनी। यानी फिर आपस कहीं में जाना। मिल बांट के आपने मिल काम चलाना है। बांट के। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? ठीक है। आप भी सफाई का काम करती हैं? आज सफाई आपकी जिम्मे कौन कौन से वार्ड हैं? एक भी वार्ड है अंदर की, मेडिकल ऐसे रूम्स है,
गाड़ी तो गायनी 2, आज गायनी 2 में सुबह सफाई किसने की? किसी ने भी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे किसी ने अपने नहीं हक की। लिए बैठे हैं। अब इन्फेक्शन फैल जाए अंदर, और गायनी का मसला आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट मसला हाँ, पता है। है। तो माँ जी, वो खानदान, वो कबीला जिस पूरी जिंदगी उस अजियत को फेस कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तो एहतजाज पे बैठे थे। MS MS जिम्मेदार, जी, MS आप नहीं होंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਰਾਏ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? अच्छा, मेरा सवाल सादा सा है कि आज गायनी वार्ड की सफाई नहीं हुई, इन्फेक्शन फैलेगी, आप बरी जिम्मा है, आपका कोई कसूर नहीं, MS आपका कसूर है, आप ये कह रहे हैं। उस खानदान कबीले का जिम्मेदार कौन है जिसने इन्फेक्शन साथ लेके जानी है? वो MS और भुगतान? आओ भी भुगतान ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ क्या हम मुर्दा दिल नहीं हो गए? हमें लगता नहीं। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। सरकारी अस्पतालों में मैं ईमानदारी से माँ जी आपको बताऊं, इतनी बुरी हालत है स्टाफ की, इवन आप लोग मेरे पास बैठे, मैं पास खड़ा होकर ये बात करूं बगैर किसी खतरे के, कि रवैये इतने बुरे हैं कि अल अमान अल हफूज, हर बंदे से पैसे लेने हैं, हर बंदे को ख्वार करना है, हर बंदे को तंगी देनी है। अगर हमने वो गड़े ना खोदे हों तो आज हमारे नसीब में ये सब कुछ ना हो। हमने खुद गड़े खोदे में ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, गलत नहीं कह रही, बल्कि अंदर आके तक कहीं नहीं काफी सरकारी मुलाजिम नहीं देता, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, चाहे वो डेली वेजिस पे हो, चाहे कुछ भी हो, वो समझता है कि ये जो बंदा मेरे पास आ गया इसको मैंने खुंडी छुरी से जिबा करना है। ऐसे ही है ना? ठीक है, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किस वार्ड में होती हैं? मैं मेडिकल 3 में रात की ड्यूटी करती थी। अच्छा जी। तो मेरा ना ससुर फौत हो गया था, अल्लाह रहम तो करे। इनसे मैं पूछ के हर बात हुई तो मैं चली गई। तीसरे यानी कि 5 दिन उधर रही, 5 दिन के बाद मैं आई तो ईद थी, ईद की छुट्टियां थी, तो मैंने फिर भी ईद वाले दिन यानी कि मैंने ड्यूटियां की हैं। ज़ारा का हमारी फौत कितना अरसा पहले की बात है? ईद तो गुजरे भी बड़ी देर हो गई। पास उन्हें साल हो गया इस बात को, मैं आपको सारी बात बताऊंगी। साल यानी कि ईद की भी मैंने फिर ड्यूटियां की, सारा कुछ किया, ठीक है। ड्यूटी के बाद इन लोगों ने कहा कि ये औरत रात का टाइम आती है। गुजरांवाले से मैं आई थी, मैंने फोन, लियाकत भाई ने, जाकर भाई ने मुझे फोन किया कि आप जिधर भी आओ ना जल्दी से जल्दी पहुंचो कि मैं इस टाइम ड्यूटी पे अकेला हूँ, जिधर भी हो। मैंने कहा भाई मैं इधर, वो कह रहा है, मैंने कहा रात के ना 1-2 बज के जाएंगे। कहते हैं ठीक है बजने दो, तुम आप आ जाओ। मैं आई हूँ, ये सारे लियाकत बड़ील वगैरह ये सारे इधर बैठे हुए, इन्होंने ना बड़ी बुरी नजरों से मुझे। ये लियाकत साहब क्या चीज के हैं? जो भी ये है कौन, इनकी जिम्मेदारी क्या है? सफाई वालों का हमारे ऑर्डर के अच्छा। ठीक सैलरी है। इन्होंने बड़े बुरी नजर से ना मेरी तरफ देखा। जब इसने देखा तो मैंने 1 महीना ड्यूटी की, तो मेरे ऑर्डर के कागज आए हैं, इन्हें ना पकड़ के ना ऐसे हाथ में कर दिए। करने के बाद इन्होंने कहा कि अच्छा आपा जी आ जाना, कल आना आ जाना। मैंने इसी तरीके से ना मैं इनके साथ ना ड्यूटी करती रही। 2 महीने गुजरे, तीसरे महीने इन्होंने मुझे कह दिया कि चले जी आप इधर से चले जाए। अच्छा जी। हाँ जी आप चले जाए। मैंने कहा ठीक है, आपने महीने बाद आना है। महीने बाद में आई कि 5,000 रुपया दे दो। मैंने कहा मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मैं आपको 5,000 कहाँ से दूं? रिश्वत मांग रहा था। जी। फिर इन्होंने ये बात की, इन्होंने कहा पे चल दफा गया यहाँ से। मैं चली गई, रोती भी चली गई। जब मैं चली गई फिर इन्होंने कहा अरे अपा इधर आ, फलाने दिन आ गई। मैं आ गई। इन्होंने मुझे ना थोड़ा सा लालच दिया कि चलो तुसी ना 2-4 दिन काम कर दो। अमर साहब सेंट्री ने 2 बजे की ड्यूटी मेरे को 10 दिन 1 दिन करवाई, 5 दिन 1 दिन करवाई ड्यूटी। इन्होंने फिर मैंने भेज दिया, कहते असि आपा तनख्वाह नहीं दे सकते, अगो काम नहीं बनया, तुसी चले जाओ। ठीक है। लियाकत बड़ेल ने क्या कि तुसी ना इन्होंने मैंने गलत मशवरा दिता कि मेरे नाल काम करो, मैं तो ड्यूटी पक्की करवा दूंगा, तुसी किसी नाल गल नहीं करनी। अच्छा जी। मुसलमान सारा कुरान हिफाजा उमरा मैं कीता, अल्लाह पाक दा घर में देखा, मैं झूठ नहीं बोला। जी लियाकत बड़ेल ने कहा ड्यूटी अल्लाह ने देनी है, पैसा अल्लाह ने देना, रोटी रिज़्क अल्लाह ने देनी है। लियाकत बड़ेल ने मुझे कुछ नहीं देना। अगर मेरी ये लियाकत बड़ेल नाम का एक जो सेनेटरी है, हाँ जी, उसने फिर वो ये काम कर रहे हैं। फिर ये भी मुझे लफ्ज कहा कि अगर तुमने किसी से बात की तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल से ब्लॉक कर दूंगा, तुझे आने, बाप का अस्पताल है, तुझे आने नहीं दूंगा, तुझे इधर देखने दूंगा, तेरे नजरों से ऐसे हो जा। मुझे इसने यहाँ से बाजू पकड़ा और ये साइड पे ले गया। इसने मुझे कहा पंजाबी, वो पता नहीं क्या मीठे लूने चोल, गलत अल्फाज का, लेकिन उसने इस लफ्ज में उसने डाल दिया कि ये चीज खिला दे तू तेरे में ड्यूटी तो पक्का करवा दूंगा। उसके बाद इसकी दोस्त है पेट्रोल पंप के पास साइड पे खड़ी होती थी, अपनी आंखों से देखते थे, अपनी आंखों से ये उसको बैठाता था। वो मेरे से बाद हम 15 साल हो गए, ये
लेबर रूम की क्या बात कर रही हैं आप? मैंने यार के सड़क पे बजरी उठा के ना ये बन रहा था, हमने अपने रास्ते बना बना के वाटे साफ किए हैं, मरीजों को देखा भाला है, हमने ड्यूटी के 15 साल हो गए पूरे। ये लियाकत बड़ेल जो है आप जानती हैं इसको? आप जानती हैं? औरत बेवा हो, इसको भी कहता था निकाह कर ले, निकाह कर ले, इसको कहता था, ये औरत को कहता था। हाँ जी, उसने ऊपर लियाकत बड़ेल जो है बुनियादी तौर पर आप मुतासरीन लियाकत बड़ेल हैं, आप इसके खिलाफ बैठे हैं या? नहीं, हम अपने हक के लिए बैठे हैं, हम अपने हक के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हमें हमारा हक दे दें, हम यहाँ से उड़ जाते हैं, हम तंग आगे लॉलीपॉप ले लेके। सर आप कहते हैं ना ये चंद लोगों को अंदर ब्लैकमेल किया जाता है कि यहाँ पे आप आओगी ना तेरी तनख्वाह बंद कर देंगे। अच्छा, ये कौन कहता है? लियाकत बड़ेल कहता है? अंदर के बंदे कौन है? नाम लेके इन रजील इंसानों के नाम लेके बताएं जो आपको अंदर ही खिचड़ी पकती है। कहते हैं अगर तू गई तो तेरी, ये चंद लोग इसलिए बैठे हैं कि वो कहते हैं कि अगर तू गई तो तेरी तनख्वाह इस महीने होगी, ओके अगले महीने तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं बेवा औरत हूँ। कहाँ गई? काम पे नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेट जी, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर। ये तख्ते लाहौर है, ये पंजाब है, ये पाकिस्तान है, और यास्मीन राशिद साहिबा, उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब, ये आपकी सरपरस्ती में ये तमाम मामलात हैं जिनको आपको कोप अप करना चाहिए था। जाहिर है अल्लाह ने इक़्तिदार, ताकत, अख्तियार आपको दिया है, तो इन गरीब गुरबा के मसाइल का हल भी आपने करना है। शदीद नौयत के इल्जामात हैं। मैं चाहूंगा, मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि यास्मीन राशिद साहिबा इन चीजों को इंटेरोगेट करें। आप माँ हैं, आप खानदान कबीला चलाती हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो ये खातून और इन दो ख्वातीन ने बात की है, ये लियाकत बड़ेल नामी जिनसी बिल्ला जो है, ये कौन है? इसको इंटेरोगेट किया जाए और इन अस्पतालों को महफूज बनाया जाए। अख्तियारात आप लोगों के पास है, इन मामलात को आपने देखना है।